going to begin with the next phylum, that is phylum Mollusca. We have so far discussed about phylum Porifera, the special feature of which is canal system, the phylum Coelenterata, which has the special feature of presence of nematocytes or nematoblasts that were stinging cells, and they show alternation of generation between polyps and medusae. The third phylum we discussed was Ctenophora, and in this phylum the special character was bioluminescence. The fourth phylum we discussed was phylum Platyhelminthes, which were the flatworms because they were dorsally ventrally flattened. And presence of hooks or suckers is a peculiar character of this phylum. Phylum Aschelminthes was the next phylum, and this Aschelminthes will be having rennet cells for excretion, and they are commonly known as roundworms. In the Aschelminthes, for the very first time, the separate sexes and that also sexual dimorphism was observed. That is, females were longer in size as compared to males. Then we had a look on phylum Annelida. The characteristic is metameric segmentation, that is, body is divided into equal sized segments, was a characteristic of phylum Annelida. Then the phylum Arthropoda is having a special feature of joint appendages. That is, the legs will be joint. So that joint appendages is a characteristic of phylum Arthropoda. Annelida was the phylum in which for the first time a closed circulatory system was observed. But again in Arthropoda, the circulatory system remains open. So now we are discussing about the next phylum, that is Mollusca. As we haven't discussed anything about the notochord over here, it indicates that all these organisms are invertebrates. What are these organisms? Invertebrates. मतलब इनके पास vertebral column भी नहीं है और इनके पास notochord नहीं है, इसीलिए ये सारे non-chordates में belong करते हैं, right? So let us now talk about the phylum Mollusca. अब मोलस्का जो फाइलम है, इसके भी आपने काफी ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे. इसमें सारे वही ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं जो बीचेस पे देखने को मिलते हैं, जो जनरली शेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं. When we move around the beaches, we observe different types of shells. दो उनमें ऑर्गेनिज्म नहीं होता, पर उनके जो शेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा होता है, वो डिग्रेड नहीं होते, इसीलिए बहुत सारे शेल्स हमें सी शोर्स पे मिल जाते हैं. So all those organisms with the calcareous shell on the body are included in the phylum Mollusca. मतलब उन सबके पास क्या होता है? Calcareous shell होता है. The second largest phylum after phylum Arthropoda is the phylum Mollusca. मतलब सबसे ज्यादा species अगर किसी phylum की है तो वो है Arthropoda. But second largest amount of species अगर किसी phylum की है तो that is Mollusca. So we mentioned the first point, that is it is the second largest phylum. So there will be a number of species included in the phylum Mollusca. Just like Arthropoda includes all insects, the Mollusca includes all the shell covered organisms, that is snails हैं, slugs हैं, ये सब Mollusca में belong करते हैं. The molluscans are the organisms which will be having, if we talk about their habitat, they will be terrestrial और aquatic. दोनों ही तरह के पॉसिबल हैं इनके लाइफ फॉर्म्स, क्योंकि सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली इन वाटर. जैसे कि ऑक्टोपस है तो कम्प्लीटली पानी में होता है. ऑक्टोपस इज द ओनली मॉलस्कन जिसके पास कोई भी शेल नहीं है. Otherwise all of them, right, all of the other organisms belonging to mollusca have presence of shells. And where are they found? They are found in water as well as on the land. बट ऑक्टोपस जैसे ऑर्गेनिजम्स है वो या तो फिर सेपिया है जिसे कहते हैं कटल फिश, तो वो सिर्फ पानी में होते हैं. पर बाकी अगर स्नेल्स की बात की, स्लग्स की बात की, तो वो लैंड पे भी होते हैं, इसीलिए इनका दोनों जगह पे एग्जिस्टेंस होता है. सम आर टेरेस्ट्रियल एंड सम आर एक्वेटिक. इन एक्वेटिक ऑल्सो सम आर फ्रेश वाटर एंड सम आर मराइन. मतलब कोई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मराइन भी होते हैं. If we talk about their symmetry,
The symmetry of these organisms is bilateral symmetry. Bilateral symmetry is divisible into two equal halves by an axis passing through the center. Okay, either longitudinal, vertical, horizontal, दोनों में से कोई भी चलेगा, but it should be divisible into two equal halves. So ये organism two equal halves में divide हो जाते हैं, इसलिए bilateral symmetry है. Level of organization, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम. सो हैबिटेट इज बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. सिमेट्री इज बाइलेटरल एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स होती है. Next we talk about their germ layer. So obviously these organisms are going to be triploblastic. These are triploblastic. That is presence of ectoderm, mesoderm and endoderm. 3 layers are present. That is germ layer is triploblastic. If we talk about xylem, then these organisms are also सिलोमेट. मतलब एनिलीडा से लेके सारे ही कैसे हैं, सिलोमेट है. कि कोई भी एसिलोमेट नहीं है. एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, आगे हम काइनोडर्मेटा पढ़ेंगे. ऑल ऑफ देम आर सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स. मतलब सब में ही सिलम प्रेजेंट है. सिर्फ सूडोसिलोमेट में क्या याद रखना है, एस्केलमिंथिस, और एसिलोमेट में याद रखना है प्लैटिहेलमिंथिस. चैप्टर कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इफ यू differentiate characteristics of each phylum. Then only you will be able to remember the characteristics of every phylum. Difference के form में उसे prepare करो. Then only it will be properly understood. तो xylem है, तो these organisms are coelomate organisms. तो हमने basic characteristics के बारे में बात कर ली है, ठीक है. Now we talk about that. These organisms are covered with calcareous shell. What do they have? Calcareous shell. मतलब इनके पास बॉडी सरफेस पे ऊपर की तरफ क्या होता है, कैल्सेरियस शेल होता है. और ये जो शेल होता है दैट विल बी सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. ये ऑर्गेनिजम्स शेल के अंदर कुछ ऐसे होते हैं So these organisms which I have just drawn over here, तो ये organisms में body जो है that is not divided, मतलब segments नहीं है body के, पर फिर भी इनमें 3 parts होते हैं. That is there is presence of the head part, right? This is the head part. There is presence of this enlarged part which is known as hump. And above the hump there is presence of the soft spongy skin which is called as mantle, and here there is presence of the gill slits. So these organisms, मैं थोड़ा आगे इनके बारे में लिख देती हूँ. that body is unsegmented. Body is unsegmented मतलब बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं है. जैसे एनिलीडा में कैसा होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है. आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 3 सेगमेंट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. यहाँ पे है पर वो सिर्फ डिस्टिंक्ट है, अलग नहीं है. ओके, सो अनसेगमेंटेड विथ अ distinct head part, muscular foot and
विसरल हम्प। तो 3 पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट है ये हम्प है, और ये जो है दैट इज द मस्कुलर फुट पार्ट। तो फुट पार्ट में इनके पास लेग्स नहीं होते, ये जो फुट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट विल हेल्प इन इट्स लोकोमोशन, दैट विल हेल्प इन इट्स मूवमेंट। सो दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, a muscular foot and a visceral hump. Who is having? The organisms belonging to phylum Mollusca will be having this distinct structures in their body. Okay. Now along with that, there is presence of the soft spongy skin in the hump is known as, that is on the hump, is known as mantle, is known as mantle। क्या होता है इनके पास, ये जो विसरल हम्प है उसके ये जो डॉर्सल साइड है और उसके ऊपर हमने ये जो ड्रॉ किया है, दिस इज नोन एज द हम्प पार्ट। क्या कहते हैं उसे? हम्प पार्ट। और ये जो ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है इसे कहा जाता है मैंटल। Mantle is what? It is a smooth skin that is present above the hump, जिसे कहा जाता है mantle. And the space between the mantle and hump is called mantle cavity. Is called mantle cavity. मतलब यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स कहे। Mantle क्या है? ये डॉर्सल सरफेस पर जो स्किन है दैट इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन, जिसे मैंटल कहते हैं। एक्चुअली यही मैंटल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्सेरियस शेल। मतलब ऊपर जो शेल बनता है उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट्स की जरूरत होती है उसकी सिंथेसिस जो है वो ये मैंटल से ही होती है। सो मैंटल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल लेयर। और द स्पेस जो है मैंटल कैविटी और हम्प के बीच में जो जगह है उसे कहा जाता है मैंटल कैविटी। ये पूरी ही मैंटल कैविटी है। और ये मैंटल कैविटी जो है इट कंसिस्ट ऑफ फेदर लाइक गिल्स। इट कंसिस्ट ऑफ फेदर लाइक गिल्स। जो आप यहाँ पे देख सकते हो वो क्या है? फेदर लाइक गिल्स है। और ये जो गिल्स हैं दे हेल्प in respiration and excretion। तो गिल्स जो है उनका फंक्शन रेस्पिरेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है इन द केस ऑफ मॉलिस्कन्स। वापिस एक बार देख लीजिए, बॉडी जो है इनकी दैट विल बी कवर्ड विद अ कैल्सेरियस शेल। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब है तो अनसेगमेंटेड बॉडी बट डिस्टिंक्ट रीजन्स देखने को मिलेंगे। हेड दिखेगा, फुट होगा और हम्प होगा। इनकी जो आईज होती है वो ऐसे थोड़े टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स पे उनकी आईज होती है। सो दे हैव प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स लाइक टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। मतलब टेंटिकल्स जो होते हैं उनपे इनकी आईज लोकेटेड होती है। तो इनकी आईज जो है दैट इज नॉट लोकेटेड विद इन, मतलब हेड में नहीं है, इंस्टेड ऐसे एडिशनल जो टेंटिकल्स है उसमें है। अब ये जो डॉर्सल साइड पे सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन है दैट विल बी नोन एज मैंटल एंड द स्पेस बिटवीन द मैंटल एंड द हम्प इज कॉल्ड मैंटल कैविटी। कैविटी में क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है, फेदर लाइक गिल्स। और यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो इन्हीं गिल्स से होगा। Another thing is that their mouth contains a structure called radula that helps in grasping and eating the food. तो फूड के लिए ग्रेस्पिंग करना, फूड को च्यू करना, लाइक इनके पास तो टीथ होते नहीं है, तो फॉर च्यूइंग, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड दे हैव दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेड्यूला। मतलब ये आप देख सकते हो उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे माउथ में ये रेड्यूला है विच विल ग्राइंड द फूड एंड देन आफ्टर दे हैव समथिंग इंटेस्टाइन्स लाइक स्ट्रक्चर एंड देन इट एंड्स इनटू द आउटसाइड फॉर एक्सक्रीशन। तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होती है
और सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी ओपन होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। CS मतलब मैंने यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है। अभी एनिलिडा में क्लोज था सर्कुलेटरी सिस्टम, पर आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन है। मतलब ब्लड जो है ये इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता, इनका ब्लड को कहा जाता है हीमोसाइनिन। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है वैसे इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कहा जाता है हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन जो होता है वो स्लाइटली व्हाइटिश ब्लूइश कलर का होता है। So they have distinct type of blood which contains the pigment hemocyanin. और circulatory system open है, मतलब it will be flowing directly into the sinuses and it will not be present in the blood vessels or capillaries. Sexes की बात करें तो they are dioecious, मतलब sexes are separate, right? Dioecious. अब आपको डाइशियस और मोनोइशियस टर्म याद रखने पड़ेंगे। डाइशियस मतलब जब भी सेपरेट सेक्सेस होंगे तब, और डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मतलब लार्वा फॉर्म होता है, ओके। और लार्वा फॉर्मेशन के बाद ही दे विल बी ग्रोइंग इनटू एडल्ट एंड दे विल बी ओवीपेरस, मतलब एग ले करेंगे। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है मतलब लार्वा होता है, और ओवीपेरस होते हैं मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला याद रखना है पिला। पिला दैट इज नोन एज एप्पल स्नेल। पिला is apple snail. You have to remember the scientific as well as the common names over here. So Pilla that is known as apple snail. Pycnotada. Pycnotada that is pearl oyster. Pycnotada which is pearl oyster. Then after there are different examples जो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। Sepia that is cuttlefish. Loligo that is squid. Aplysia that is sea hare. Okay, Pilla, apple snail, Pycnotada, pearl oyster, Sepia, cuttlefish, Loligo, squid, Aplysia, sea hare. इसके अलावा chiton that is Catopleura, chiton, Dentalium that is tusk shell. ओके, इसके अलावा ऑक्टोपस है विच इज कॉल्ड डेविल फिश। एग्जाम्पल्स तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे। जस्ट आई हैव रिटन हियर सो दैट यू कैन मेमोराइज सम ऑफ देम। पिला इज एप्पल स्नेल, Pycnotada इज pearl oyster, Sepia is cuttlefish, Loligo is squid, Aplysia sea hare, Catopleura chiton, Dentalium tusk shell, octopus that is devil fish are some of the examples of the phylum Mollusca. Next we start with the phylum Echinodermata. The next phylum to discuss is phylum Echinodermata. Just like Mollusca, Echinodermata are the organisms which are found in water. But molluscans were found on water as well as on the land. Whereas the organisms belonging to the phylum Echinodermata are completely marine. मतलब ये जो organisms होते हैं वो exclusively marine ही होते हैं, ना ही ये fresh water में देखे जाते हैं और ना ही ये कभी land पे होते हैं। Echinodermata का सबसे कॉमन एग्जाम्पल शायद आपने देखा होगा एंड दैट इज द स्टारफिश। स्टारफिश अगर आपने कहीं पे भी देखा होगा तो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, इंस्टेड द सरफेस इज हैविंग सर्टेन स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर and therefore Echinodermata itself means spiny bodied organisms। मतलब ये जो organisms होते हैं उनके सरफेस पे
एक्सोस्केलेटन भी होता है, एंडोस्केलेटन भी होता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर्स, दैट इज कैल्शियम के ऑसिकल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस एज वेल एज विद इन इट्स बॉडी, एंड देयरफॉर दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम पहले लिख देते हैं, दे आर स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। तो इनके बॉडी पे क्या होता है, स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें प्रोटेक्शन में भी, दैट इज इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। सो स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आर द इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा मतलब स्किन एंड इकाइनो इज स्पाइन्स, सो प्रेजेंस ऑफ स्पाइन ऑन द बॉडी, दैट मीन्स स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। अदर थिंग वी टॉक अबाउट दैट देयर endoskeleton consists of calcareous ossicles. What is present in the endoskeleton? Calcareous ossicles. Actually calcareous मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, ऑसिकल्स मतलब नॉट बोन्स बट बोन लाइक रिजिड स्ट्रक्चर्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रिजिड स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी में अंदर होते हैं एंड दैट गिव्स देम प्रॉपर शेप। ओके, तो उसी की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कैल्सेरियस ऑसिकल्स कहते हैं। पर कैल्सेरियस ऑसिकल्स आर व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन। जैसे हमारा एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है, बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ है, वैसे ही इनका एंडोस्केलेटन भी कैल्सेरियस ऑसिफाइड स्ट्रक्चर से बना है, पर ये कंप्लीटली बोनी नहीं होते, कैल्शियम के बने हुए थोड़े स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहा जाता है कैल्सेरियस ossicles. So they have presence of calcareous ossicles. Now if we talk about the habitat, so habitat of these organisms is exclusively marine. इसके पहले ऐसा एक और फाइलम आया था जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूसिवली मराइन थी, वो था टीनोफोरा। टीनोफोरा का कोई भी स्पीसीज फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल नहीं होता, सेम वे इकाइनोडर्मेटा का भी कोई भी स्पीसीज फ्रेश वाटर में या तो टेरेस्ट्रियल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में ही ये होते हैं, राइट। अगर आपको एक्वेरियम विजिट करो तो भी आपको छोटे स्टार फिशेस देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। सो यू शुड ऑब्जर्व दीज ऑर्गेनिजम्स इफ इट इज पॉसिबल। हैबिटेट है एक्सक्लूसिवली मराइन। अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे अनयूजुअल सिमेट्री देखने को मिलती है, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं, these adults are having a radial symmetry. एडल्ट्स की सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल, बट जो लार्वा होता है they have a bilateral symmetry. So both the symmetries are observed. This is also an exclusive character जो किसी और फाइलम में नहीं है। Echinodermata is the only phylum in which adults are radial symmetry, मतलब 2 इक्वल हाफ, कोई भी एंगल से कट करो हो जाएंगे डिवाइड, और लार्वा जो होता है उसकी सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is definitely going to be organ system. So they have organ system level of organization. Germ layer is going to be triploblastic. अब सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, इवन इफ यू डोंट मेंशन देन ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे टिल ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है। तो जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलम की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं सिलोमेट, सो सिलम इज प्रेजेंट, सो ऑर्गेनिजम्स आर सिलोमेट। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि बॉडी जो है इनकी स्पाइनी बॉडी होती है, एंडोस्केलेटन में इनके पास कैल्सेरियस ऑसिकल्स होते हैं जो और किसी में नहीं है। हैबिटेट इनका एक्सक्लूसिवली मराइन रहता है। सिमेट्री जो होती है वो अडल्ट्स की रेडियल और लार्वा होता है उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है। जर्म लेयर 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलम जो है दैट इज सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी कंप्लीट होती है।
digestive system is complete. ओके, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी होगा और एनस भी होगा. तो माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड. माउथ किस तरफ होता है? वेंट्रल साइड. एंड एनस ऑन डॉर्सल साइड. मतलब अगर स्टारफिश ऐसे है, राइट, तो स्टारफिश का माउथ जो है वो नीचे की तरफ है और उसका जो एनस है वो डॉर्सल साइड है. सो माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड एंड द एनस इज ऑन डॉर्सल साइड. ओके, नाउ दैट वाज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है. नाउ वी टॉक अबाउट सम स्पेशल फीचर ऑफ दिस फाइलम. स्पेशल फीचर, there is presence of a water vascular system. water vascular system. अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. इनके पास जो है वो और किसी भी फाइलम के पास नहीं है. क्या है इनके पास? वाटर वैस्कुलर सिस्टम. वाटर वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी, इनमें तो 5 आर्म्स होते हैं, राइट. तो इनमें जितने भी मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं उन सब में 5 आर्म्स रेडिएटिंग हुए और बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 आर्म्स होते हैं. तो इनके पास क्या होता है दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ लाइक दिस स्ट्रक्चर. ये मैं अंदर की तरफ से बात कर रही हूं, ठीक है. इनसाइड ये एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि स्टारफिश का बीच में है, ठीक है, तो दिस विल बी इन द सेंटर. और ये जो है वो रेडिएटिंग आर्म्स जितने भी एक्सटेंड होंगे उधर तक ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड होने वाला है. लाइक दिस इट इज गोइंग टू एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रेडिएटिंग आर्म. और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वेरी स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है ट्यूब फीट. क्या कहा जाता है? ट्यूब फीट. So whenever what is water vascular system? तो water vascular system मतलब ये ट्यूब फीट जो होते हैं, जब भी स्टारफिश को मूव होना हो तो ये ट्यूब फीट जो होते हैं they get filled up with the water. As they get filled up with the water enters from the tube feet into this canals, the canals which are located in the side, and then after it will be entering into all the canals in the center. And when all such canals get filled up with water, it helps in locomotion. It helps in lifting the body from one place in the water and keeping it to other place. तो locomotion के लिए essential होता है इनके पास water vascular system. वैसे तो ऐसी है, कुछ आपकी बुक में नहीं दिया गया है, पर आप सिर्फ समझने के लिए याद रख सकते हो कि ट्यूब फीट जो होते हैं and this radiating canals located in each arm helps in what? It helps in, मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूं, water vascular system helps in locomotion as well as capturing the food, मतलब प्रे को कैप्चर करने के लिए, as well as in respiration. मूव करने के लिए, फूड कैप्चर करना हो तो बॉडी लिफ्ट करना पड़ेगा, राइट. जहां पे भी उन्हें प्रे दिखे उस तरफ मूव होना पड़ेगा. सो देयर मूवमेंट इज पॉसिबल इन वाटर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द वाटर वैस्कुलर सिस्टम. इसीलिए ये जो है वो इकाइनोडर्मेटा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो और किसी भी फाइलम में नहीं है. क्या? वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ठीक है. तो हेल्प इन लोकोमोशन, capturing the food as well as respiration. Here excretory system is absent. Excretory system is absent और इनका जो circulatory system होता है वो भी open होता है, just like arthropoda and mollusca. तो excretory system है नहीं और circulatory system absent होता है. अगर sexes की बात करें तो sexes are separate. Sexes are सेपरेट. फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्सटर्नल, मतलब लार्वा जो होता है वो पानी में रिलीज कर दिया जाता है,
and then after it will be gametes जो होते हैं वो पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं, they fuse and they result into formation of larva. रिप्रोडक्शन जो है इनका ये सेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. और डेवलपमेंट जो होता है वो है इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा फॉर्म होगा एंड लार्वा विल चेंज टू द एडल्ट. सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, और डेवलपमेंट जो है दैट इज विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इट इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, अगर हम थोड़े एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, राइट? जैसे कि ऑफ्यूरा है. पहले तो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल लिख देती हूँ. एस्टेरिस. एस्टेरिस इज व्हाट? स्टार फिश. एंटीडोन is the sea lily. Cucumeria is sea cucumber. फिर वैसे ही सी अर्चिन भी होता है, ऑफ्यूरा दैट इज सी अर्चिन. तो ऐसे भी एग्जांपल्स है. ब्रिटल स्टार इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल. ब्रिटल स्टार मतलब यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिखे. एस्टेरिस मतलब स्टारफिश, एंटीडोन सी लिलीज, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार. इफ यू आर हैविंग इनफ टाइम, what you can do is search out for the images of these organisms. When you search out, you can study more about the characteristics of the organisms. Though you don't have to go in very much detail about every single organism, but you can just visualize their images for your understanding. So that was all about phylum Echinodermata. Next we will start with the phylum Hemichordata.